یہ قصہ ہے شام کے شہر دمشق کا، جہاں ایک مختار نامی لڑکا رہتا تھا۔ اس کی پیدائش ایک غریب گھر میں ہوئی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے اپنے گھر میں غربت ہی دیکھی تھی۔ جب بھی وہ اپنے ارد گرد کے مالدار لوگوں کے پاس آسائشیں دیکھتا تو اس کا دل جلنے لگتا اور اس کے من میں خواہش پیدا ہوتی کہ اس کے پاس بھی یہ سب کچھ ہو۔ اسی لیے وہ جلد امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگا۔ وہ دمشق کے ایک بہت بڑے بازار میں کسی تاجر کے پاس کام کرتا تھا۔ کام کے دوران بھی وہ دوسرے لڑکوں سے اپنی اس امیر ہونے والی خواہش کا اکثر اظہار کرتا رہتا تھا۔ تاجر کو اس کی اس حرکت کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے اکثر وہ اسے برا بھلا کہتا رہتا تھا اور اسے ایسا کرنے سے منع کرتا اور کہتا کہ کام کے دوران محض کام پر دھیان دیا کرو۔ دن بدن تاجر کا کاروبار ترقی کرنے لگا اور اس کا کاروبار وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ اس سال بھی اسے بہت منافع ملا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے پاس کام کرنے والے غریب مزدوروں کی مدد کر دوں۔ وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں سب لڑکوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور ان سے کہنے لگا، میں تم لوگوں کا ماہانہ معاوضہ دگنا کر دوں گا اور تمہیں جس چیز کی خواہش ہے تمہاری وہ بھی خواہش پوری کر دی جائے گی۔ وہ باری باری ہر ایک مزدور سے پوچھنے لگا اور ان کے مطالبات بھی پورے کر رہا تھا۔ پھر مختار کی باری آئی۔ تاجر نے مختار سے پوچھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ جس پر مختار نے مسکرا کر اپنا سر نیچے کر لیا۔ تاجر نے کہکا لگایا اور کہا، تم شرماؤ مت اور اپنی خواہش بتاؤ، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس پر مختار کہنے لگا، حضور آپ کا کاروبار بہت بڑا ہے، دمشق کے سب سے بڑے تاجروں میں آپ کا نام آتا ہے، شہر کے وزیر مشیر بھی آپ کی عزت کرتے ہیں۔ میں جب بھی آپ کی اتنی بڑی جائیداد دیکھتا ہوں تو میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جتنی دولت آپ کے پاس ہے اس کا 10واں حصہ بھی میرے پاس ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ تاجر کو اس سے اسی طرح کی خواہش کی امید تھی۔ آج تاجر نے اسے ڈانٹنے کی بجائے اسے کہا، میں تمہیں اپنی جائیداد کا 10واں حصہ دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ مختار نے جواب دیا، حضور میں اتنا خوش قسمت انسان کیسے ہو سکتا ہوں کہ مجھے آپ کی جائیداد کا 10واں حصہ مل جائے۔ تاجر نے فوراً اپنے سیکرٹری کو بلایا اور اسے 2 حلف نامے لکھنے کو کہا۔ پہلے حلف نامے میں اس نے لکھوایا کہ وہ اپنی جائیداد کا 10ویں حصے کی بجائے آدھا حصہ مختار کو دے دے گا، جبکہ دوسرے حلف نامے میں لکھوایا کہ مختار ساری زندگی اس کا غلام رہے گا۔ مختار دونوں حلف نامے پڑھ کر حیران رہ گیا۔ تاجر نے دونوں حلف ناموں پر اپنے دستخط کیے اور مختار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہارے پاس 10 دن ہیں، تم نے ان 10 دنوں میں ان 3 سوالات کے جواب ڈھونڈ کر لانے ہیں۔ اگر تم ان 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈ کر لے آئے تو پہلے حلف نامے کے مطابق میری آدھی جائیداد تمہارے نام کر دی جائے گی، اور اگر تم ناکام رہے تو دوسرے حلف نامے کے مطابق تم ساری زندگی میرے غلام رہو گے۔ مختار کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ پھر تاجر نے اس سے کہا کہ میرے 3 سوال لکھ لو۔ مختار نے لکھنا شروع کیا۔ تاجر بولا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اس نے پہلا سوال لکھا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا۔ تاجر نے کہا کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ وہ تھوڑی دیر رکا اور پھر تیسرا سوال پوچھا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تاجر نے تیسرا سوال بول کر بلند آواز میں کہا، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ مختار نے دونوں پروانے اٹھائے اور بازار سے دوڑ لگا دی۔ اس نے اسی شام شہر بھر کے دانشور ادیب اور مفکر لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے سامنے تینوں سوال رکھ دیے اور ان سے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ پہلے سوال پر ہی کوئی رائے قائم نہ کر سکے۔ مختار نے دوسرے دن اور زیادہ عقل مند لوگوں سے ملاقات کی، لیکن پھر بھی نتیجہ وہی نکلا۔ وہ دن بدن مزید لوگوں سے ملتا رہا اور ہر آئے دن لوگ بڑھاتا رہا، لیکن اسے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ مل سکا، اور یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دمشق شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ یہ سوال اٹھا کر گلی کوچوں میں پھرتا رہا، مگر اسے کہیں سے بھی کوئی جواب نہ مل سکا۔ اس کا لباس پھٹ گیا
सर पर पहनी पगड़ी ढीली हो गई, जूते फट गए और पैरों में छाले पड़ गए। वो इंतहाई बुरे हाल में था। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आन पहुंचा। अगले दिन उसे ताजर के पास पेश होना था। मुख्तार को यकीन था कि ये उसकी आज़ादी का आखिरी दिन है। कल वो ताजर का गुलाम बन जाएगा और उसे उसके इशारों पर चलना पड़ेगा। वो मायूसी की हालत में दमिश्क शहर से दूर एक कच्ची बस्ती में दाखिल हुआ। बस्ती के सिरे पर एक दरवेश की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उसकी कुटिया तक पहुंच गया। उसने अंदर दाखिल होकर देखा। वो दरवेश सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था। साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और दरवेश का कुत्ता दूध पी रहा था। दरवेश ने मुख्तार की बिगड़ी हालत देखी तो उसने कहका लगाया और उससे कहने लगा, नौजवान लड़के, तुम बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हो। तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद है। मुख्तार ने दरवेश की तरफ हैरत से देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं किसी सवालों की खोज में यहां तक आया हूं? दरवेश ने सूखी रोटी साइड पर रखी और अपना झोला उठाकर मुख्तार के सामने किया। उस झोले के अंदर बहुत कीमती लिबास था और ये वो लिबास था जो दमिश्क के अमीर तरीन लोग पहनते थे। दरवेश ने कहा कि ऐ नौजवान लड़के, मैं भी कभी दमिश्क के शहर के बड़े ताजरों के पास काम करता था। मैंने भी एक बार दमिश्क के सबसे बड़े ताजर से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा अब तुम्हारे सामने है। दरवेश ने दोबारा सूखी रोटी के टुकड़े उठाए और पानी में डुबोकर खाने लगा। मुख्तार ने मायूस होकर पूछा, क्या आप भी अपने सवालों के जवाब ढूंढने में नाकाम रहे? दरवेश ने कहका लगाया और बोला, मेरी सूरत हाल तुमसे मुख्तलिफ थी। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने ताजर को जवाब बता दिए और बदले में मुझे जो जायदाद मिलनी थी उसका परवाना फाड़ा और उस ताजर को सलाम करके इस कुटिया में आकर बैठ गया। अब मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तार की हैरत और ज्यादा बढ़ गई। वो ये सोचने लगा कि उसने जायदाद ना लेकर कितनी बड़ी हमाकत की, लेकिन अभी उसके इस तज्जिए का वक्त नहीं था। उसके लिए ये तीनों सवालों के जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचे वो दरवेश के सामने फरियादी बन गया और दरवेश से पूछने लगा, क्या आप मुझे इन तीनों सवालों के जवाब बता सकते हैं? दरवेश ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, मैं पहले 2 सवालों के जवाबात तुम्हें मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। मुख्तार के पास दरवेश की शर्त मानने के अलावा कोई दूसरा हल नहीं था। उसने हाँ में गर्दन हिला दी, जिस पर फकीर ने पहले सवाल का जवाब दिया, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो और जितना मर्जी ताकतवर क्यों ना हो, वो इस सच्चाई से दूर नहीं भाग सकता। फिर वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर कोई इस जिंदगी को दायमी समझकर और इसकी आसाइशों को देकर इसके धोखे में आ जाता है। दरवेश के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। मुख्तार सरशार हो गया। उसने तीसरे सवाल के जवाब के लिए शर्त पूछी। दरवेश ने कहका लगाया और कुत्ते के सामने पड़े दूध के प्याले को उठाया और मुख्तार के सामने रख दिया और उसे कहने लगा, मैं तुम्हें तब तक तीसरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा जब तक तुम कुत्ते का जूठा दूध नहीं पियोगे। मुख्तार के माथे पर पसीना आ गया और उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का बचा हुआ दूध पीना नहीं चाहता था। दरवेश ने कंधे अचकाए और बोला, ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। अगर तुमने इनकार किया तो कल से तुम उस ताजर के गुलाम बन जाओगे और सारी जिंदगी इस कुत्ते से बदतर जिंदगी गुजारोगे। अगर तुम दूध पियो तो तुम उस जिल्लत से बच जाओगे और तुम्हें ताजर की आधी जायदाद भी मिल जाएगी। फैसला तुमने करना है। मुख्तार मुश्किल में पड़ गया। एक तरफ आजादी की जिंदगी और आधी जायदाद थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो काफी देर बैठा सोचता रहा, यहां तक कि माल जायदाद जीत गई और इज्जत नफ्स हार गई। मुख्तार ने प्याला उठाया और एक ही सांस में सारा दूध पी गया। दरवेश ने फिर से कहका लगाकर कहा, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्ज होती है। ये इंसान को कुत्ते का बचा हुआ जूठा दूध भी पीने पर मजबूर कर देती है।
और ये वो सच है जिसने ताजर का परवाना फाड़ कर मुझे इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था कि जूं जूं मैं जिंदगी के धोखे में आऊंगा और मौत को जितना ज्यादा फरामोश करूंगा, मैं उतना ही गर्ज और लालच की दलदल में धंसता चला जाऊंगा और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो। तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी और जिस लालच को तुम पाने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें कुछ भी करने पर मजबूर कर देगी। मुख्तार शर्मिंदा हो गया। वो दरवेश की कुटिया से निकला और दमिश्क के बाजार की तरफ चल पड़ा। जूं जूं वो बाजार के करीब पहुंचता जा रहा था, उसके अंदर एहसास शर्मिंदगी का इजाफा होता चला जा रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ ताजर की दहलीज पर पहुंचा। उसने ताजर के सामने तीनों सवालों के जवाब रखे। ताजर सवालों के जवाब देकर हैरान रह गया। अगले ही लम्हे मुख्तार ने दोनों परवाने ताजर के सामने फाड़ दिए। ताजर की हैरानी परेशानी में बदल गई। उसे उसकी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुख्तार ने तीनों सवालों के जवाब देने के बावजूद ताजर की जायदाद को ठुकरा दिया। दुनिया को छोड़कर दमिश्क से दूर एक कच्ची बस्ती में पहुंच गया और वहां पर मिट्टी की झोंपड़ी बनाकर अब बसेरा कर लिया। दोस्तों, हमें किसी दिन पुरसुकून जगह पर बैठकर ये सोचना चाहिए कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है और हमें जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए। हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग जिंदगी के धोखे में आकर कहीं मौत जैसी सच्चाई को फरामोश तो नहीं कर बैठे। हम लोग कहीं इस कहानी के मुख्तार तो नहीं बन गए और कहीं गर्ज की लालच में हमें अंधा तो नहीं कर दिया। तन्हा बैठिए और सोचिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।